So this is the question. Balance sheet as on 31st March 2017. Liability side. Share capital 14% preference share of rupees 100 each, 8,000 equity share of rupees 100 each, but only rupees 60 is paid up. Then reserves and surplus, nothing is there. In secured loan we have 14% debenture 2 lakh 30, having floating charges on all assets. Interest outstanding on above is this much. Then loan on mortgage of land and building 1,50,000. Unsecured loan sundry creditors 1,17,800. So this is the liability side. Then the asset side: land, building, plant and machinery, patent, stock, debtors, cash at bank, profit and loss account. This is the total of the balance sheet. The company went into liquidation on that date. Prepare liquidator statements of account after considering the following. Preference dividend was in arrear for 1 year. Sundry creditors include preferential creditor amounting to 30. तो इस पे एक मार्किंग किया है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ इंक्लूड है, राइट. Then the liquidators realize the assets as follows: land 80, building 2 lakh, plant and machinery 5 lakh, patent 50, stock 1 lakh 60, debtors 2 lakh. The liquidation expenses amounted to 29,434. The liquidator is entitled to a commission of 2% on sale of assets excluding cash plus 2% of the amount distributed to unsecured creditor other than preferential creditor. Okay? 2% of the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors. Liquidators made payment on 30 June 2017. ये डेट को भी हमको मार्किंग करना है क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च का, लेकिन एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 30 जून को. देन इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन शेल बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट. ओके, सो मॉर्गेज लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है. तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट. With the help of this we have to prepare liquidators final statement. Okay, तो हेडिंग दीजिए liquidators final statement और दो साइड बना दीजिए receipt payment inner and outer column and amount rupees. Please draw the columns everyone. I think only 2 of you are there, so please both of you give me the indication. दोनों के कॉलम्स ड्रॉ हो जाएंगे तो प्लीज डन बोलिए so that I can understand, because Priyanka was telling that yesterday it was very fast, right Priyanka? Yes, sir. Okay. You students done? Yes, sir. Both of you have done? Yes, sir. Okay. So now we will solve the problem, right? सबसे पहले हमको क्या लिखना है, assets, right? और assets में क्या करेंगे, सबसे पहले कैश एट बैंक यहाँ से हम लोग लिख देंगे, कैश एट बैंक 60,000, राइट. तो ये लिख दीजिए पहले आप लोग, कैश एट बैंक 60,000, कैश एट बैंक 60,000. Yes, sir. ओके. उसके बाद में बाकी के एसेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, एडजस्टमेंट में से हम लोग लिखेंगे, राइट. एडजस्टमेंट में से कैसे लिखेंगे, डेटर्स से कितना पैसा मिला है 2 लाख, डेटर्स से कितना मिला है 2 लाख, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 2 लाख, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख. सो प्लीज राइट दिस, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख. Answer. ओके. सन्ड्री डेटर्स के बाद में स्टॉक से मिला है 1,60,000, स्टॉक से मिला है 1 लाख
60, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 1,60,000, स्टॉक 1,60,000, प्लीज राइट दिस, Yes, sir. स्टॉक 1,60,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक के बाद पेटेंट से मिला है 50, तो पेटेंट से मिला है 50, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेटेंट 50, पेटेंट Done, पेटेंट sir. 50, ओके। पेटेंट के बाद प्लांट एंड मशीनरी से मिला है 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से मिला है 5 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी से 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से 5 लाख, Yes, sir. ओके। अच्छा देखिए, उसके बाद है ना, बिल्डिंग से इतना मिला है और लैंड से इतना मिला है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, सेपरेट दिखाएंगे, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग ने गिरवी रखा है ना। यहाँ पे देखिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग ने गिरवी रखा है, किसके अगेंस्ट में गिरवी रखा है, लोन के अगेंस्ट में, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, वी विल राइट द हेडिंग है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, उसको अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग बेच के कितना पैसा मिला वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने को पता चलेगा लैंड एंड बिल्डिंग बेच के टोटल पैसा कितना मिला है, बिल्डिंग बेच के 2 लाख और लैंड बेच के 80,000, राइट। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मिला के कितना मिला है, 2,80,000, ओके। ये 2,80,000 में से जो लोन है वो माइनस करेंगे, लोन कितने का है, 1,50,000 का, राइट। तो वो 1,50,000 का लोन हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी कितना बचेगा, 1,30,000, ठीक है। जैसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सब एसेट्स हम लोग ने एज इट इज़ लिखे, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी के नीचे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो हम लोग ने गिरवी रखा है। कैसे पता चला है, क्वेश्चन में बोला है, देखिए लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसीलिए हमने पहले ही इसके ऊपर मार्किंग कर लिया है, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना पैसा मिला, तो बिल्डिंग से कितना मिला, 2 लाख मिला, और लैंड से कितना मिला, 80 मिला, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2,80,000। उसके अगेंस्ट में बैंक लोन कितना है, 1,50,000, राइट। तो बैंक लोन 1,50,000 क्लियर कर दिया, तो बचा कितना, 1,30,000, राइट। तो ये हो गया मेरा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, प्लीज राइट दिस, Done, sir. ओके। तो अभी ये मेरा रिसीट साइड कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ वी विल बी कमिंग टू द पेमेंट साइड, ओके। पेमेंट साइड का ऑर्डर आपको पता है, सबसे पहले लिक्विडेटर्स का जो भी ड्यूज़ है वो क्लियर करना है। तो लिक्विडेटर्स के ड्यूज़ में सबसे पहले क्या आएगा, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस, राइट। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, 29,434, तो सबसे पहले वो लिखेंगे, 29,434, 29,434, ठीक है। Yes, sir. ओके। फिर लिक्विडेटर के एक्सपेंस के बाद में लिक्विडेटर का कमीशन लिखना है, क्या लिखना है, लिक्विडेटर का कमीशन, राइट। अभी लिक्विडेटर का कमीशन कैसे देने बोला है, देखिए, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, राइट। मतलब उसको जो भी एसेट्स बिका है उसके ऊपर 2% कमीशन देना है, प्लस 2% of the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors, राइट। मतलब दो बार कमीशन देना है, एक तो 2% जो एसेट बिके हैं उस पर देना है, और दूसरा 2% जो हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देने वाले हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के, उसके ऊपर भी 2% देना है, राइट। तो इसका कमीशन निकालेंगे कैसे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लिक्विडेटर्स कमीशन। तो पहला वाला जो है ना वो 2% ऑफ, ये 2% ऑफ मैंने कैसे निकाला, 2% ऑफ द एसेट्स रियलाइज, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेरा एसेट्स रियलाइज का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, राइट। लैंड बेच के इतना मिला, बिल्डिंग बेच के इतना मिला, प्लांट एंड मशीनरी बेच के इतना मिला, पेटेंट बेच के इतना मिला, स्टॉक बेच के इतना मिला, सन्ड्री डेटर्स बेच के इतना मिला, तो इसका टोटल होता है 11,90,000, 11,90,000। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2% ऑफ 11,90,000 विच कम्स टू 23,800, 23,800, राइट। फिर उसको और 2% कमीशन देना है, लेकिन किसका देना है, जो हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अमाउंट पे करने वाले हैं ना उसका देना है, राइट। तो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करने वाला हूँ मैं, ये स्टेप पे मुझे नहीं पता है, तो ये वाला मैं ब्लैंक रख दूंगा, और आगे का हम लोग मतलब
सम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब मुझे ये पता चल जाएगा ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मैंने कितना पे किया, उस वक्त ये वाला कॉलम मैं फिल कर दूंगा, राइट। फिलहाल के लिए मैं इसका जो कमीशन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2% ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड, वही वाला मैं खाली पे कर पाऊंगा, राइट। तो वो मैंने उसको पे कर दिया बाय लिक्विडेटर्स कमीशन, इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर लेने का, राइट। और पहला वाला जो 2% है, 2% ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, राइट। तो ये मेरा एसेट सेल का टोटल है और उसके ऊपर मैंने उनको 2% पे कर दिया और एक 2% देने का बाकी है, इसके लिए एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, लिख लीजिए लिक्विडेटर्स कमीशन, इनर कॉलम में लिख दीजिए और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना। क्यों छोड़ रहे? क्योंकि एट प्रेजेंट मुझे ये पता नहीं है कि मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट दिया है। डन सर। ओके, अभी लिक्विडेटर के बाद में हम लोग डिबेंचर्स को पे करेंगे, राइट। तो डिबेंचर को कैसे पे करेंगे? बाई 14% डिबेंचर, कितना है 2,30,000, तो ये डिबेंचर का पैसा दे दीजिए। बाई 14% डिबेंचर 2,30,000, बाई 14% डिबेंचर 2,30,000। डन। ओके, फिर 14% डिबेंचर के बाद में जो उसका इंटरेस्ट है वो भी दे दीजिए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन अबाउट दैट इज 32,200, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 32,200, 32,200। ओके, अच्छा अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में है ना अपने को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ेगा, सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। वाई वी हैव टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों पे करना है? देखिए जैसे मैंने बताया था कि एक डेट मैंने मार्किंग किया था, मेरा बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च का है, राइट। लेकिन एक्चुअल में हम लोग पेमेंट कभी, लिक्विडेटर जो है पेमेंट कभी दे रहा है 30 जून को दे रहा है, कभी दे रहा है 30 जून को। ये मेरा मार्च का बैलेंस शीट है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीना का टाइम लग रहा है ना पेमेंट देने के लिए। तो जितना महीना लेट हो रहा है उतने महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ये डिवेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेट दिया हुआ है ना कि लिक्विडेटर ने पेमेंट कभी दिया, तो लिक्विडेटर कभी पेमेंट दे रहा है 30 जून को और एक्चुअल में ये बैलेंस कभी का है 31 मार्च का। तो कितना महीना लेट पेमेंट मिल रहा है? 3 महीना, अप्रैल मई और जून, राइट। तो वो 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ये डिबेंचर को देना पड़ेगा। ओके, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? डिबेंचर का वैल्यू कितना है 2,30,000, तो 2,30,000 पे कितना परसेंट? 14%, और कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया देखिए यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट 2,30,000 पे कितना परसेंट? 14%, जो मैंने यहाँ से लिया 2,30,000 पे 14%, और मंथ्स कितना है? 3। कैसे मुझे पता चला 3 मंथ्स है? क्योंकि 31 मार्च का बैलेंस शीट है और सेटलमेंट का डेट है जून, अप्रैल में जून। ओके, तो इंटू 3/12, इंटू 3/12, तो ये इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अपने को पे करना पड़ेगा, 8050, 8050, ठीक है। Okay students, any doubt? The calculation of extra interest is clear to everyone? लिखा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा वाला इंटरेस्ट लिखा सबने? ओके, चलिए अभी ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने के बाद में अभी हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे। किसको पे करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, राइट। तो इसमें अपने को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, राइट। ओके, देखिए क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 30,000, अमाउंटिंग टू 30,000। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग पे कर देंगे 30,000, राइट। 30,000 यहाँ पे पे कीजिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000। ठीक है, यस सर। फाइन। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में हम लोग क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे करेंगे। क्या पे करना है?
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कैसे मिलेगा, देखिए टोटल ये जो क्रेडिटर है ये इतना है ना 1,17,000, इसके अंदर प्रेफरेंशियल कितना था 30, तो ये प्रेफरेंशियल माइनस कर देंगे तो अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखने का बाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे मिलेगा ये अमाउंट, टोटल 1,17,800 था, लेकिन उसमें प्रेफरेंशियल कितना है 30 जो हमने पे कर दिया ना, उसको हम लोग माइनस करेंगे 1,17,800 माइनस 30, सो दैट कम्स टू 87,800। 87,800। सर सुनो, अगर यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहता तो वो प्रेफरेंशियल से पहले उसका पेमेंट होता क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट हम लोग यहाँ पे कर देते ना बेटा, ये जब सरप्लस फॉर और सिक्योरिटीज निकालते हैं ना, क्योंकि सिक्योर्ड अगर क्रेडिटर है तो उसका सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट में दिया है वो दिया होता है ना क्वेश्चन में, हाँ। तो उसका सेटलमेंट इधर हो जाता है जब हम सरप्लस फ्रॉम क्रेडिटर्स निकालते हैं ना तभी। क्लियर है ना? हाँ। ठीक है। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग ने कितना पे किया 87,800। एनी डाउट? नो सर। ओके। अभी आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कमीशन हमने रोक के रखे थे ना वो निकाल सकते ना, यस सर। क्योंकि उसमें बोला था 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 2%। हाँ, 87,800। तो उसके ऊपर 2%, उसके ऊपर 2% ऑफ 87,800। 1,756। 1,756 और ये दोनों मिला के आउटर कॉलम में ले लीजिए। ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए अभी अपने को प्रेफरेंस मतलब कंट्रीब्यूटर्स को यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करने का मालूम है क्या, एग्जाम में एक्चुअली टोटल करके देखने का कि बैलेंस कितना है। जैसे कि यहाँ पे 11 लाख है, तो 11 लाख मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 लाख, राइट। उसमें से यहाँ तक का टोटल मैं चेक कर रहा हूँ, खाली इधर मुझे लिखना है, इसके लिए मैं टोटल मार रहा हूँ, खाली इधर तक का मतलब पैसा कितना बच रहा है पहले वो देखना है, उसके बाद फिर आगे करना है। क्या हो गया? हाँ, ये इतना बैलेंस है 413, तो 11 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे इतना, तो 6,86,000 कुछ बच रहा है, मतलब है पैसा हम लोग पेमेंट दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि 1 साल का है ना प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स बाकी है, तो पहले वो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स दे देंगे 1 साल का, राइट। 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स कैसे कैलकुलेट होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस कैपिटल पे दिया जाता है, तो 4 लाख कैपिटल है और 14% उसका डिविडेंड रेट है, तो 4 लाख पे 14% कितना आएगा 56,000, राइट। तो 56,000 हम लोग इनको दे देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर्स, ठीक है। तो पहले ये लिख दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स कितना आया 56,000। कैसा आया, क्लियर है ना? प्रेफरेंस शेयर सर ये कैपिटल 40% कहाँ से है? ये दिया है ना क्वेश्चन में, परसेंटेज दिया रहता है ना, ये देखिए 4 लाख है और इसका परसेंटेज 14 है ना डिविडेंड का, यस सर। ठीक है।
तो 56,000 हम लोग ने एरियर्स का पे कर दिया। अभी उसका कैपिटल भी दे सकते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख, तो वो भी दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे 4 लाख। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अभी अभी अपने को क्या करना है, लास्ट में अपने को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना है। किसको पेमेंट देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने से पहले अपने को डेफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, राइट। डेफिशिएंसी निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये पार्टली पेड अप शेयर है ना, 60 रुपीज़ ही पेड अप है। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल 11 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है यहाँ पे रफ में मैं ले लेता हूँ साइड में कैलकुलेशन करने के लिए खाली। $89940 है, राइट। और अगर ये 11 लाख में से मैं 899,9940 अगर माइनस करता हूँ, इट इज़ 11 लाख माइनस 89940, तो मेरे पास बैलेंस बचता है 200,960, 200,960, राइट। ये सारे कैलकुलेशन आपको रफ में करके रखने हैं, राइट। डेबिट माइनस क्रेडिट करके मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है वो देखना है, राइट। तो बैलेंस अवेलेबल क्यों निकालते हैं? क्योंकि अपने को पहले डेफिशिएंसी निकालना है, राइट। तो डेफिशिएंसी क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, ये पार्टली पेड अप शेयर है ना, इसके लिए डेफिशिएंसी निकालना ज़रूरी है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप शेयर था तो हम लोग एज इट इज़ पे कर देते थे, राइट। तो अभी यहाँ पे ये निकालने के बाद में अपन हेडिंग लिखेंगे लॉस ऑन इक्विटी शेयर, राइट। तो अभी लॉस ऑन इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4,80,000। कितना है? 4,80,000। तो 4,80,000 मैंने लिखा, लेकिन मेरे पास बैलेंस कितना है? 200,960। तो 200,960 बैलेंस माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी कितना आएगा? 279,040, 279,040। ये टोटल डेफिशिएंसी है। मेरे को पर शेयर चाहिए तो मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा। 8,000 इक्विटी शेयर है ना, तो 8,000 से डिवाइड करेंगे तो लॉस पर शेयर आएगा 34.88। लॉस पर शेयर आएगा 34.88। इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। लॉस ऑन इक्विटी शेयर अपने को निकालना है। कैसे मिलेगा लॉस ऑन इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000 है। 4,80,000 में से मेरे पास बैलेंस खाली इतना ही है, तो वो बैलेंस को मैं माइनस कर दूंगा। तो जो आंसर आया उसको कहते हैं डेफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, राइट। सो आई वांटेड पर शेयर, तो मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लॉस पर शेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वाला स्टेप लिख दीजिए, आपको एज अ नोट बनाना है, इसको आप नेक्स्ट पेज पे बनाइए, चलेगा। लॉस पर शेयर 34.88। ये स्टूडेंट्स डन? एक मिनट सर। यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए। इसी में अपने को टोटल 8,000 इक्विटी शेयर, राइट। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में मैंने क्या किया है, उनको देना है 60 रुपया, क्योंकि उन्होंने 60 रुपया कंपनी को पे किया है ना। लेकिन लॉस अपन उससे रिकवर करेंगे। एक शेयर पे लॉस कितना है? 34.88, राइट। तो 60
minus 34.88 that comes to 25.12. 25.12 मतलब अपन इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना पैसा पे करेंगे 25.12। ये 25.12 कैसे मिल रहा है? 60 रुपीज़ उनका पेडअप है, राइट? तो 60 रुपीज़ पेडअप में से 34.88 लॉस माइनस करने का, सो दैट विल कम टू 25.88। ओके, सो 8000 मल्टीप्लाई बाय 25.12, तो 8000 को 25.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 200960। ये अपन पे कर देंगे, पेड ऑन इक्विटी शेयर, पेड ऑन इक्विटी शेयर। ओके, यस सर। ओके, अब ये जो पे कर रहे हैं ना वही यहाँ पे अपने को लिखना है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट 1। ओके, क्योंकि वर्किंग नोट 1 के हिसाब से कितना है? 200960। ओके, और ये करने के बाद में फाइनली आपका ये जो पेमेंट साइड है वो टैली होना चाहिए। सर इसमें टैली होना जरूरी होता है ना? ये टैली होना चाहिए, पेमेंट आपका रिसीट पेमेंट टैली होना चाहिए। यस सर। चलिए डन स्टूडेंट्स, यस। यस सर। shall I take one more question? अरे बोलिए, यस सर। दो दूसरा क्वेश्चन ले लो अभी। यस हाँ सर। दे दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? चलिए मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017, लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल में 15,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid, 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each 80 paid up, 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each 70 paid up। अभी इसमें देखिए दो तरीके के इक्विटी शेयर है, एक पे 80 रुपीज़ पेड अप हुआ है और एक पे 70 रुपीज़ पेड अप हुआ है, राइट? Then 8% debenture having floating charge on all asset, outstanding debenture interest, creditors। Asset side में goodwill, land and building, plant and machinery, furniture, office equipment, stock, debtors, bills receivable, cash in and profit and loss, right? The company went into liquidation on that date. Prepare liquidator statement of accounts after considering the following: preference dividend was in arrears for last 3 years and it was to be paid before paying equity share capital. Sundry creditors include a loan from bank secured on hypothecation of plant and machinery। मतलब ये क्रेडिटर्स के अंदर सिक्योर्ड लोन इंक्लूडेड है और हम लोग ने किसका सिक्योरिटी दिया है? प्लांट एंड मशीनरी का, तो इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी पे मैंने मार्किंग कर दिया। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी इंक्लूड है, राइट? The liquidators realized the assets as follows: land and building, plant and machinery, office equipment, furniture, stock, debtors, bills receivable, right?
Legal charges on liquidation amounted to 1,500. Liquidation expenses 3,900. Then liquidators remuneration was fixed at 1,500 plus 2% on sale of assets excluding cash plus 4% of the amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors. Okay, तो ये इसका रेम्यूनरेशन के बारे में बोला है. और द लिक्विडेटर्स मेड पेमेंट ऑन 31 मार्च. 31 मार्च को पेमेंट दिया है, लेकिन बैलेंस शीट बना है दिसंबर को, मतलब 3 महीना इसमें भी एक्स्ट्रा हो रहा है. तो डिवेंचर होल्डर को 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने वो क्वेश्चन में दिया था. राइट, चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं. बनाइए, कॉलम्स बनाइए. लिक्विडेटर्स, चलिए स्टूडेंट्स, डन, कॉलम्स डन. Yes, sir. Okay. Priyanka, what about you? Yes, sir. Okay. Is it fast today or is it okay? Okay, sir. Okay, fine. तो सबसे पहले हम लोग एसेट लिखेंगे, और एसेट में क्या लिखेंगे? कैश. तो कैश कितना रखा हुआ है? 12,000. सो जस्ट राइट दिस फर्स्ट, टू एसेट, और उसमें लिखिए कैश इन हैंड 12,000. कैश इन हैंड 12,000. ठीक है. Yes, sir. Okay. अभी बाकी का एसेट अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. यहाँ से क्या बेच के कितना मिला है. तो देखिए, बिल्स रिसीवेबल बेच के कितना पैसा मिला है? 21,000. राइट, तो यहाँ पे लिखिए बिल्स रिसीवेबल 21,000. बिल्स रिसीवेबल 21,000. बिल रिसीवेबल 21,000. Done, स्टूडेंट्स. Yes, sir. उसके बाद में डेटर्स 90,000. डेटर्स 90,000. तो डेटर्स 90,000. डेटर्स 90,000. Yes, sir. चलिए, डेटर्स के बाद में स्टॉक 1,05,000. स्टॉक 1,05,000. स्टॉक 1,05,000. Done, sir. स्टॉक के बाद में फर्नीचर 12,000. फर्नीचर 12,000. तो फर्नीचर 12,000. फर्नीचर 12,000. Done, sir. फर्नीचर के बाद में ऑफिस इक्विपमेंट 19,500. ऑफिस इक्विपमेंट 19,500. ऑफिस इक्विपमेंट 19,500.
फिर ऑफिस इक्विपमेंट के बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखा है ना, तो उसका ट्रीटमेंट सेपरेट देना पड़ेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी को फिलहाल छोड़ दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग ले लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 3,22,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3,22,500। लैंड एंड बिल्डिंग 3,22,500। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ध्यान में क्या रखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये ऐसे मत लिखिए। उसका रीज़न क्या है? देखिए बिल रिसीवेबल जल्दी बिकता है, डेटा से जल्दी पैसा मिलता है, और ये इसीलिए ये ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं इसमें, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग तक हमने लिख दिया, राइट। नाउ वी विल कम टू सरप्लस ऑन सिक्योरिटी। तो टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, राइट। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी में प्लांट एंड मशीनरी मैंने गिरवी रखा था ना, तो प्लांट एंड मशीनरी से कितना पैसा मिला? 75,000। तो मैं लिखूंगा 75,000। उसके अगेंस्ट में मेरा बैंक लोन कितना था? बैंक लोन इधर दिया, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिटर्स में इंक्लूड है ना, तो बैंक लोन 60,000 हम लोग पे करेंगे, तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज कितना आएगा? 15,000। माई सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी इज 15,000। ठीक है, any doubt? No, sir. Receipt side is clear to everyone? Yes. Shall we move to the payment side now? हेलो, Yes, sir. ओके। पेमेंट साइड में सबसे पहले हम लोग पे करेंगे, यहाँ से पेमेंट देना है। लीगल चार्जेस कितना है? लीगल चार्जेस 1,500 रुपये थे, यहाँ पे लिखिए बाई लीगल चार्जेस 1,500 रुपीज़। बाई लीगल चार्जेस 1,500 रुपीज़। डन सर। लीगल चार्जेस के बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो कितना है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? 3,900। तो बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,900। बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,900। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस के बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ओके, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो लिखिए बाई लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, बाई लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, राइट। अभी देखिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैसे बोला है, उसको फिक्स्ड 1,500 रुपया देना है। फिक्स कितना देना है? 1,500। तो पहले लिख दीजिए फिक्स्ड 1,500, फिक्स्ड 1,500, फिक्स्ड 1,500 लिखा, Yes, sir. ओके। उसके बाद में 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश। तो 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, तो सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश यही है ना सारे, तो ये सारे का मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया है 6,45,000। तो 2% ऑफ 6,45,000 दैट कम्स टू 12,900, 12,900, राइट। और एक 4% वाला भी देना है, लेकिन एट प्रेजेंट मुझे नहीं पता, क्योंकि क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे करेंगे ना, उसके ऊपर कुछ है 4%, तो वो 4% वाला लाइन में ब्लैंक रखूंगा। 2% वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया, राइट। 2% ऑफ 6,45,000 दैट इज 12,900। एंड आगे बोला है 4% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, राइट। तो वो मुझे पता नहीं है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को एट प्रेजेंट मैंने कितना दिया है, इसके लिए इसको हम लोग ब्लैंक रखेंगे। Yes, sir. ओके, अभी किसका पेमेंट करना है? डिबेंचर्स का, राइट। तो डिबेंचर्स कितना है क्वेश्चन में देखते हैं। बाई 8% डिबेंचर 1,50,000, तो डिबेंचर को पे कर दो बाई 8% डिबेंचर 1,50,000, बाई 8% डिबेंचर 1,50,000, ठीक है। फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बाकी है? 6,000, तो वो भी पे कर दो बाई आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000,
बाय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि अपना ये दिसंबर का बैलेंस शीट है, लेकिन पेमेंट दिसंबर में क्लियर नहीं हो रहा है, मार्च में क्लियर हो रहा है। कभी क्लियर हो रहा है? मार्च में। दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो ये जो डिबेंचर है कितना है? 1,50,000 है ना, 1,50,000 पे 8%, और कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, इसका आंसर आता है 3,000। तो ये 3,000 इंटरेस्ट हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे। बाई इंटरेस्ट 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12। डन सर। ओके, चलिए अभी अपने को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है, राइट? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है यहाँ पे बोला है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000, तो वो माइनस कर देंगे। बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000, बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000। ओके, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करेंगे। पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कैसे निकालना है। डन सर। ओके, अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कैसे निकलेगा? देखिए टोटल 2,40,000 है। 2,40,000 में 60,000 बैंक लोन का था और 15,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का था। दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग। 2,40,000 में से 60,000 बैंक लोन का और 15,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। इसका मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 1,65,000। कितना है? 1,65,000। ये 1,65,000 हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर देंगे। सर एक बार फिर से बताना। हाँ, ये टोटल 2,40,000 है। यस। ये 2,40,000 में बैंक लोन कितना था? 60, जो कि क्रेडिटर्स में ही इंक्लूड है ना, ये बोला है क्रेडिटर्स यस इंक्लूड अ सर। बैंक लोन ऑफ 60, वो माइनस कर देंगे। और ये भी क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15, तो ये दोनों को माइनस करेंगे 2,40,000 में से, तो यस अपने को समझ अनसिक्योर्ड गए। क्रेडिटर मिलेगा ना। हाँ। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले कमीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो 4% बोला था ना अभी यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखना क्या बोला है मालूम है? 4% ऑफ अमाउंट पेड टू अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला है, राइट? तो कैसे मिलेगा? देखिए 4% ऑफ, 4% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है? 1,65,000। कितना है? 1,65,000, और इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो 1,65,000 में अगर मैं 15,000 इंक्लूड करूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा? बोलिए। 1,80,000। 1,80,000, राइट? तो 4% किसका लेके हम लोग? 1,80,000 का, 1,80,000 का 4%, 7,200। राइट, और सब मिला के कमीशन हो जाएगा 21,600। ओके, चलिए अभी हम लोग प्रेफरेंस वाले को पे करेंगे, राइट? तो सबसे पहले क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियस। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियस, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियस कितने साल का डिविडेंड बाकी है इसमें? 3 साल का। इधर क्वेश्चन में बोला है, ऊपर ऐसा है, ये देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियस फॉर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का कैसे निकालेंगे? देखिए 1,50,000 है ना, 1,50,000 पे परसेंटेज कितना है? 8%। तो 1,50,000 इंटू 8%, ये 1 साल का मिलेगा, और 3 साल का बाकी है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 3, सो दैट कम्स टू 36,000। दैट कम्स टू 36,000। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियस मैंने पे कर दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एनी डाउट?
नो नो सर सर। फिर प्रेफरेंस वाले का कैपिटल पे कर दो, कितना कैपिटल है 1,50,000, तो यहाँ पे लिखो बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। ठीक है, अभी फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने से पहले लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये है ना रफ में करने का टोटलिंग, पहले मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, बट यू टू डू इट इन द रफ। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, $5,97,000, और ये इधर का टोटल मैं यहाँ पे निकालता हूँ कितना आता है। ये दोनों भी टोटल आपको रफ में निकालना है। $5,52,000, 5,52,000, ये मैं हटा देते हैं। तो 5,97,000 में से 5,52,000 जाएगा, मतलब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है 45। 45,000 45 बैलेंस, इसको याद रखने का 45 बैलेंस। और वैसे जैसे पहले सब में नोट बनाया था ना, वैसा नोट बनाइए नेक्स्ट पेज पे। लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। अभी इस बार दो है इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,40,000 प्लस 3,15,000, तो दोनों मिला के इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 2,40,000 प्लस 3,15,000, 5,55,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। 5,55,000 क्या हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फिर बैलेंस मेरे पास 45 था ना, मैंने अभी निकाला राइट। तो बैलेंस अगर 45 है, इसका मतलब डेफिशिएंसी कितना है 5,10,000 का, 5,10,000 का डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है लॉस। सर एफिशिएंसी का फिर से बताना। क्या क्या बोलिए, एफिशिएंसी का अमाउंट कहाँ से आया फिर ये से? इसमें से बैलेंस 45 माइनस किया ओके ना, सर, ओके ओके। ठीक है। 5,10,000 आया। अभी मेरे को पर शेयर चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूँगा। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मेरे पास दो है, 3,000 एंड 4,500। ये दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना हुआ 7,500, राइट। तो इसका मतलब लॉस पर शेयर मेरा होएगा 68। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस शीट से लेना है 3,000 एंड 4,500, तो 7,500 आया। इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा लॉस पर शेयर आया 68। ओके, अभी सेम इसके पहले में एक ही इक्विटी शेयर था, लेकिन इसमें दो है राइट। तो पहला है 3,000 इक्विटी शेयर राइट। तो 3,000 इक्विटी शेयर पे उसने उसका पेड अप वैल्यू कितना है 80, उसने 80 पेड अप किया है ना। लॉस कितना रिकवर करना है 68, तो 80 में से 68 माइनस कर देंगे, यानी इनको अपन सिर्फ 12 रुपया ही देंगे पहले वाले को। तो 3,000 इंटू 12 कितना होगा 36,000। 36,000 हम लोग पेड करेंगे, पेड ऑन 3,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, देखिए पहले ये वाला स्टेप, 3,000 इक्विटी शेयर है ना, जो कि 80 रुपीज़ पेड अप वाले हैं। तो 80 में से 68 लॉस रिकवर करना है, मतलब उनको देना कितना है 12 ही। तो 3,000 इंटू 12 कितना पे करेंगे 36,000। तो 36,000 हम लोग पे करेंगे 3,000 इक्विटी शेयर पे। एनी डाउट? हेलो, सिमिलरली दूसरे कौन सा है 4,500, दूसरा कौन सा है 4,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,500 इक्विटी शेयर, इनका पेड अप वैल्यू कितना है 70। तो ये 70 है ना, 70 में से लॉस कितना रिकवर करना है 68, यानी इनको कितना पे करेंगे खाली 2 रुपया। कितना पे करेंगे 2 रुपीज़, राइट। तो 2 रुपीज़ पे करेंगे तो कितना आएगा 4,500 इंटू 2 9,000, 9,000 पेड ऑन 4,500 इक्विटी शेयर, यानी टोटल मेरा पेमेंट होगा 45,000 का। माई टोटल पेमेंट विल बी 45,000, राइट। तो टोटल हम लोग 45,000 पे करेंगे, ये लिख लीजिए पहले 45,000
ठीक है, देखिए फिर से एक बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। इसमें दो टाइप के इक्विटी शेयर है ना, एक 3000 इक्विटी शेयर है जो कि 80 रुपीज़ पेड अप है। कहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, 3000 80 रुपीज़ पेड अप, तो 80 इंटू 60 माइनस 68 लॉस रिकवर करेंगे तो इनको 12 ही देना है, तो 3000 इंटू 12 36,000 इनको पे करेंगे। दूसरा 4500 इक्विटी शेयर है जो कि 70 रुपीज़ पेड अप है, तो उस पर भी 68 रुपीज़ लॉस रिकवर करेंगे तो इनको भी 2 रुपया देना पड़ेगा, तो 9000। टोटल मिला के पेमेंट कितना करना है, 45,000। तो यहाँ पे लिख देने का बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, और लिखने का वर्किंग नोट 1, कितना पे किया मैंने, 45,000। फाइनली ये पेमेंट करने के बाद में टोटल करने का कम इक्वल $597 आ रहा है। सर आपने पहले 5,52 किया था ना, उसमें 45,000 ऐड कर दो। हाँ ठीक है, तो भी आ जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो आ जाता है। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। तो ये चैप्टर में ऐसा ही है, सिर्फ आपको ये लास्ट में ये जो हम लोग बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और ये जो लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो डेट आपको चेक करके केयरफुल रहना है। ये 2-3 जगह पे थोड़ा सा सतर्क रहना है, बाकी चैप्टर ईजी है। यस सर। ठीक है, चलिए, सो अपना कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी आपको क्वेरीज वगैरह है आप पूछ सकते हो, और रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है, जो वो मेरा यूनिक अकाउंटेंसी का चैनल है उस पर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा रिवीजन मिल जाएगा। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का रिवीजन मिल जाएगा, उसके बाद में अमालगमेशन था ना शायद आप लोगों को, यस सर। अमालगमेशन का रिवीजन मिलेगा, और कौन सा चैप्टर था, बाय बाईबैक का भी रिवीजन मिल जाएगा, अंडर राइटिंग और लिक्विडेशन, अंडर राइटिंग का भी रिवीजन मिल जाएगा। ओके, सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और अगर वो वीडियो में भी कोई क्वेरी आ रहा है तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाउ मेनी ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट टुडे, ओनली 2 राइट? सर आकाश भी था, वो चला गया पर फिर। वो चला गया, वो खाली अटेंडेंस के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं।